Hello students, how are you guys? I hope all of you are doing well and fine. I welcome you all in our next session of INMO flashback series. So guys, in this series, as you guys must be knowing by now, we are solving previous year INMO questions, and so far we have completed till INMO 2013. Okay, we started with INMO 2000, right? So we have completely solved all the papers started with the year 2000 till 2013. All the videos have been posted. You can see them out on the channel. Okay, playlist के section के अंदर भी देख सकते हो आप. Playlist has been formed, so you can see it easily. So currently we are going through INMO 2014, and for the INMO 2014 also we have done the first 5 questions already. All those videos are already posted. So today we are going to complete INMO 2014 as well. 6th question आज हम करने जा रहे हैं. It is a very good question, very difficult question actually. तो ध्यान से समझने की कोशिश करना so that you are able to grasp the thing exactly what it is. Okay, चलो. So without any delay guys, let us start the session, right? Let me introduce myself just. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics for the past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads, and KVPY, etc. Okay, although KVPY is not going to happen anymore, but yes. Okay, so guys, let's see the question that we are supposed to solve today. Okay, अगेन मैं आपको गाइज यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बिफोर हैंड. आप अपना इस क्वेश्चन को पहले से ट्राई करो. ओके, क्वेश्चन मैंने आपको शो कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द बेनिफिट्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बिफोर हैंड, बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन. ठीक है, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू, एज आई सेड, दैट मच बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू डायरेक्टली वॉच द वीडियो, है ना. ऑलराइट, सो गाइज आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन, ट्राई कर लिया इसको. हैव गिवन इट अ गुड अटेम्प्ट ऑफ 1.5 hour to 2 hours, बिकॉज दिस such kind of question does need that kind of time. Okay, it does deserve that kind of time. Okay, all right, so let us discuss. तो guys question में क्या बोल रहा है? Let n be a natural number and x is equal to set of the first n natural numbers. As you can see, it starts from 1 to n तक जा रहा है. Now question it says for subsets a and b of x, ठीक है, x के दो सबसेट हैं a और b. We define a delta b to be the set of all those elements of x which belong to exactly one of a and b. तो guys ये तो पहले definition है a delta b का. सबसे पहले I like to show you what does it mean by a delta b, right? a delta b का मतलब क्या है? तो guys let me show you that thing by Venn diagram. It makes it much more easier to understand that way. ठीक है, so let me show you here. So guys this is, let's say, set a and another set b is like this, right? So this is set A, this is set B. As you guys must know that this interval है ना जो बीच में बना होता है ये वाला, that is A intersection B, right? But what is A delta B? A delta B is exactly this region, okay, that I am shading. या तो A के अंदर हो, B के अंदर ना हो, या फिर B के अंदर हो, A के अंदर ना हो. So exactly you can write it like this, that A delta B can also be thought of as, A delta B can be thought of as, that multiple ways to understand, either A minus B union with B minus A, okay, or it can also be written as A union B minus A intersection B. You can also think of it like that, right? तो आप ये दो चीजें समझ सकते हो. But you need to understand what is A delta B on the Venn diagram to have a good understanding of this thing. ठीक है, तो अब क्या कह रहा है इसके आगे? नाउ लेट f बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x. कि आप x के देखो सबसेट्स कितने होंगे, पहले एक एक करके हर चीज को साथ साथ में समझते भी चलेंगे. f बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x, ऑल्दो x के सबसेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x कितने होंगे? एवरी एलिमेंट हैज टू ऑप्शंस, आइदर टू बी सिलेक्टेड और नॉट टू बी सिलेक्टेड, दैट इज 2 power n, राइट? नाउ आउट ऑफ दोस 2 power n सबसेट्स, f is a collection of such subsets of x such that for any two distinct elements a and b in f. तो guys देखो, now f is like a set of subsets. अब f का एक एक एलिमेंट क्या है? वो सबसेट है एक्चुअली x का, राइट? Now you want to select such a selection of f, such a collection of subsets of x which you are denoting as f, such that कि f के अंदर से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हो, whose elements are basically subsets of x, ऐसे अगर आप कोई दो सबसेट सेलेक्ट करते हो, so that it should be so that there is A delta B
हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, उनका a डेल्टा b की वैल्यू कम से कम 2 होनी चाहिए. ओके, आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. लाइक लेट्स से हम एक काम करते हैं गाइस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से, जहां पे थोड़ा बेटर समझ में आ जाए. चलो 4 एलिमेंट लिखते हैं. ओके, देन वील हैव टू राइट सो मेनी. ओके, कोई बात नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं आपको व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन बाय द सबसेट्स इन एफ. देखो लेट्स से your x element is 1 2 3 4. I'm just taking an example. There would be many subsets, of course there will be 2 power 4, right? There will be 2 power 4 subsets or 16 subsets, right? अगर आप 4 एलिमेंट लेके चल रहे हो, there will be 16 subsets. Now what all element could be in F, है ना? F के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं वो चलो बात की बात है. F के अंदर कोई 2 ऐसे सेट चूज कर सकता हूं क्या, सो दैट दोज 2 सेट्स विल हैव a डेल्टा b एज एटलीस्ट 2. मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, है ना? F के अंदर क्या हो सकता है, 1 एलिमेंट कुड बी सिंगल एलिमेंट 1 एंड सम 2 एलिमेंट्स a और b में सिलेक्ट करके दिया. F के अंदर लेट्स से एक सेट a कैसा हो सकता है, दैट इज अ सिंगल एलिमेंट 1, राइट? एंड b कुड बी यू कैन से 1 2 3. अब अगर आप गाइस देखोगे, इफ यू चेक इट आउट, a delta b for such kind of cases, what is a delta b? A delta b could be 2 comma 3, right? So that is greater than or equal to 2 elements. It is saying to us that it must contain at least 2 elements. So like there could be one case जब a के अंदर एक सेट 1 होगा, उसके अंदर 1 2 3 भी हो सकता है. There could be many other combinations, but the point is इस तरह के सेट्स का डेफिनेशन हम बोल रहे हैं कि F क्या है, ऐसे सेट्स का कलेक्शन है, सो दैट इफ यू पिक एनी 2 सेट्स इन दैट F के अंदर जो कोई जितने भी सबसेट्स हैं X के, उनमें से कुछ सबसेट्स का कलेक्शन है F के अंदर, राइट? नाउ इन दैट कलेक्शन F, द प्रॉपर्टी कंडीशन इज द सबसेट्स हैव टू बी इन सच वे सो दैट अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट पिक कर लो, एनी 2 इफ यू पिक अप, दे शुड हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन A डेल्टा B. उनके a डेल्टा b के अंदर कम से कम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए. लाइक आई कैन से शो यू कि एक और सबसेट C ऐसा भी रख सकते हो 1 2 3 4 का, जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, राइट? इन दिस सेट यू कैन सी a डेल्टा c इज 2 3 4. ये भी देख सकते हो आप, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये 2 सेट भी हो सकते हैं. सो इट कुड बी दिस, राइट? बट आप गाइस ये देख सकते हो, बट इन दिस एग्जांपल एज आई टोल्ड यू, तीनों ABC नहीं एग्जिस्ट कर सकते F के अंदर. Why? Both B and C cannot exist in F. The reason being, जब आप B डेल्टा C करोगे, but what about B डेल्टा C? B डेल्टा C is simple single element, that is 4, right? क्योंकि 1 2 3 तो दोनों में कॉमन है, तो B डेल्टा C will be only element 4. So what does this mean? That all 3 ABCs that I have written for the example case, these 3 sets simultaneously cannot exist in F. आइदर ए और बी हो सकता है या फिर ए और सी हो सकता है, बट तीनों के तीनों एबीसी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. गाइस व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग, देखो पेपर में ना अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, यू शुड आल्सो ट्राई टू मेक सम केसेस एंड थोड़ा सोचना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन. अदरवाइज अगर आप एबीसी 1 2 3 मतलब सीधा सीधा डेफिनेशन में सोचते रहोगे, काफी बार मे बी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको एक केस लेके दिखाया कि एक सेट ये मान लेते, एक सेट ये मान लेते, ये कौन सा हमें सोल्यूशन में लिख के आना है. You can just do this thing in the rough work so that it gives you much better understanding for actually doing the thing जब क्वेश्चन करना होगा, right? That is the point I'm trying to make. तो guys I hope ये बात तो समझ में आ गई कि अगर A और B के अंदर मैंने आपको दिखाया A डेल्टा B, these two can be in F. A डेल्टा C एक और लिख दिया, और those two can be also in X in F के F collection, but B and C नहीं हो सकते, right? So you can understand कि A B C तीनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर अवर कंडीशन इट इज कि कोई भी 2 अगर आप पिक करोगे तो एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट? इफ यू पिक एनी 2 सबसेट्स आउट ऑफ दिस, चूज एनी 2 एलिमेंट्स, दे शुड हैव a डेल्टा b एज एटलीस्ट 2. तो B और C में तो सिर्फ एक ही आ रहा है ना? तो जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन से? क्वेश्चन में अब इसके आगे क्या बोल रहा है, अब हमें क्वेश्चन का एक बेसिक लेवल समझ में आ गया. क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है, शो दैट f हैज एट मोस्ट 2 पावर n माइनस 1 एलिमेंट्स. हमें ये शो करना है कि जो ये F कलेक्शन है, इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 पावर n माइनस 1 एलिमेंट्स. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं. ओके,
एंड फाइंड ऑल सच कलेक्शंस ऑफ एफ विद 2 पावर n माइनस 1 एलिमेंट्स। और ऐसे सारे सेट्स बताने एफ कलेक्शंस एफ बताने हमें विद 2 पावर n माइनस 1 एलिमेंट्स, कौन कौन से जो कि सेटिस्फाई करेंगे। ओके तो पहले आते हैं गाइस फर्स्ट बात पे, दैट प्रूविंग दैट f मस्ट कंटेन f हैज एट मोस्ट 2 पावर n माइनस 1 एलिमेंट्स। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, हम इस पे ऊपर फोकस करते हैं पहले। सो गाइस देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप एक बात सोचोगे, इफ यू काउंट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट, ओके हम एक सेट डिफाइन करते हैं, दिस 1 2 3 अप टू n माइनस 1। बेसिकली n को n को x अपना जो ये वाला गिवन सेट है 1 से लेके n तक का, ठीक है, दिस इज अवर सेट n ना, ये वाला। अब इसमें लेट्स से मैंने लास्ट एलिमेंट को हटा दिया एक बार के लिए, नाउ यू आर लेफ्ट विद n माइनस 1 एलिमेंट्स, राइट। नाउ आउट ऑफ दोज n माइनस 1 एलिमेंट्स हाउ मेनी सबसेट्स कैन यू फॉर्म, है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। देखो थोड़ा हिंट तो मुझे 2 पावर n माइनस 1 से भी मिल रहा है उस चीज से, है ना। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर n माइनस 1, राइट, गॉट दिस थिंग, 2 पावर n माइनस 1 सबसेट्स होंगे, ठीक है। नाउ फॉर एवरी वन ऑफ दोज सबसेट्स, लेट्स से दीज आर 2 पावर n माइनस 1 सबसेट्स, लेट्स से दैट इज अ कलेक्शन A, इन ये यू हैव A सबसेट्स, है ना। नाउ फॉर एवरी कलेक्शन, every subset out of this 2 power n minus 1, if you do A union n, आपने हर सबसेट के अंदर n ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, नाउ फॉर एवरी सबसेट आपने उसके अंदर यूनियन n कर दिया, इन दोनों में से क्या आप दोनों सेट को चूज कर सकते हो अपने f कलेक्शन के लिए, नहीं कर सकते ना, क्यों। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल आल्सो अलोंग साइड। तो गाइज इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इस चीज का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक सबसेट इसमें से ऐसा भी होगा जिसके अंदर लेट्स से 1 2 3 चूज किया, सिर्फ आपने 3 एलिमेंट्स वाला एक सबसेट था, 1 2 3 आउट ऑफ n, राइट। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट विद A यूनियन B, A यूनियन n इन दिस केस, वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड n। तो गाइज अब एक बात सोचो, जो आप कलेक्शन F की बात कर रहे हो उसके अंदर इन दोनों में से एक ही हो सकता है ना, दोनों तो नहीं हो सकते, बोथ कैन नॉट कोएग्जिस्ट इन दैट सबसेट, इन दैट कलेक्शन F, दोनों तो कलेक्शन में एग्जिस्ट नहीं हो सकते। व्हाई, बिकॉज लेट्स से दिस इज B हियर, तो A डेल्टा B की वैल्यू तो सिंपल n है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सिंपल एक n ऐड किया एक्स्ट्रा, उसी सेट में n ऐड करने के बाद अगर आप यूनियन कर रहे हो, सॉरी डेल्टा कर रहे हो, तो एक ही एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहे, दो तो आ ही नहीं रहे। So that is what we are trying to say कि now for every subset of A, right, for every subset A out of these 2 power n minus 1 it will have a pair, उसका एक पेयर होगा A union n वाला। अब उस सेट के और उसके पेयर के सेट, उसके पेयर वाले सेट के बीच में से आप कोई एक ही एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई एक ही सेट सेलेक्ट कर सकते हो, you cannot select both, right? What does that mean? So every time for every pair you have one option, out of the two you will be selecting one, right? So that means how many ways are total, कितने maximum हो सकते हैं, इसका मतलब out of two you will choose one, ठीक है, एक करना ही है, तो टोटल हर 2 power n minus 1 तक जा रहे हो आप इस तरह से, you have 2 power n minus 1 sub pairs, you have now 2 power n minus 1 pairs of subsets, है ना, और उन दोनों में से एक चूज कर रहे हो, सो टोटल नंबर कितना आ सकता है, दैट मीन्स the maximum value of f will be 2 power n minus 1, यही बात हुई ना, obviously, right? जो हमने डिफाइन किया फॉर एवरी सबसेट, फॉर द सेट 1 to n minus 1 एलिमेंट्स का कोई भी एक आप अगर सबसेट उठाते हो, एक वो सेट उठाओ और उसमें यूनियन n करके उसमें एक एक्स्ट्रा n डाल दो, इन दो सेट के बीच में से आप दोनों सेट चूज नहीं कर सकते हो, आप एक ही कर सकते हो फॉर द कलेक्शन f, राइट। So by doing this thing, we said कि maximum 2 power n minus 1 एलिमेंट्स हो सकते हैं उस f के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम है। बट अब उस बात पे आते हैं, क्या हम कोई ऐसा सेट कलेक्शन सोच सकते हैं जिसमें कि इतने 2 पावर इक्वल टू 2 पावर n minus 1 एलिमेंट्स हो, हम सोच सकते हैं एक चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गाइज, उसके लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन मच बेटर फैशन, ठीक है। तो गाइज एक काम करते हैं,
लेट अस राइट दिस थिंग फॉर दीज 16 सबसेट्स ओनली, राइट। मैं सारे के सारे 16 सबसेट्स लिखता हूं आपको, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट अस सी, है ना, देखते हैं क्या सेट आएंगे। पहले तो सारे सबसेट्स लिखते हैं। पहला कौन सा है सबसेट? 5 है, राइट। देन सिंगल एलिमेंट 1, सिंगल एलिमेंट वाले कितने आएंगे? 1 2 3 4, है ना। अब 2 एलिमेंट्स वाले कितने आएंगे? 4 से 2 6 आएंगे। लेट अस राइट दोज एज वेल। 1 2, प्रॉपर वे में एक बार लिख देता हूं ऑर्डरली ऑर्डर फैशन में। 1 2 1 3 1 4, देन 2 3 2 4, and then 3 4. राइट, ये 2 वाले हो गए। 3 वाले कितने होंगे? 4 होंगे। दैट इज लीविंग 1 बिहाइंड बेसिकली। 1 2 3 लिख दिया जैसे आपने एक बार 2 छोड़ दिया तो 1 3 4 हो जाएगा। एक बार 3 छोड़ दोगे तो 1 2 4 हो जाएगा, है ना। 4 छोड़ दिया एक बार, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया एक बार, 1 छोड़ दोगे, दैट इज 2 3 4, right, and then lastly it is 1 2 3 4. So that is a collection of 16 subsets. ये total 16 subsets हो गए। I'll make them in pairs so that you better understand them. ये 1 element वाले कितने हो गए? ये 0 element वाला हो गया, then 1 element, then 2 elements, है ना, 6 cases हो गए ऐसे। 3 elements वाले 4 cases हो गए, and 1 with the 4 elements, right, ये 0 वाला था। So you can count them, 1 plus 4 5, 5 plus 6 11, 11 plus 1 12 plus 4 16। तो 16 के 16 सब केसेस मैंने सबसेट्स लिख दिए हैं। So guys, what we are trying to say here is, देखो 16 सबसेट्स हैं। What we are trying to say is, अगर आप 4 के बिना, यहाँ पे मैंने ऊपर जो बात की आप अगर ध्यान से देखोगे, 4 के बिना कितने सबसेट्स थे, है ना। सिर्फ 4 को हटा के देखो, ये वाला 4 हटा दो, ये हटाया, ये हटा दिया, 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 ठीक है। सो ऑब्वियसली यू हैव 8 सेट्स, 8 सबसेट्स, है ना। और उसके अलावा जितने भी सबसेट्स बचे हुए हैं उसमें अगर आप 4 ऐड कर देते हो, वो वाले सबसेट्स इसके अंदर लिखे ही हुए हैं, वही वाले सबसेट्स तो हैं वो 4 वाले। सो इन बिटवीन दोज 2 सबसेट्स यू कैन, आउट ऑफ दोज 2 यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 1 फॉर द कलेक्शन एफ, राइट। यू कैन ओनली सेलेक्ट 1 ऑफ देम फॉर द कलेक्शन एफ। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ये 1 2 3 वाले हैं, जो फर्स्ट 3 थे 1 2 3, है ना। या फिर हम यहां से शुरू करते हैं, 5 से शुरू किया आपने, 5 और 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना है आपको। लेट अस थिंक, है ना, जो आपको एक कलेक्शन एफ बनाना है उसके लिए चूज करना स्टार्ट करते हैं। 5 और 4 में से कोई एक चूज करना है, राइट। सो इफ आई एम सेलेक्टिंग 4, तो ठीक है, मैंने पहले 4 सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब 1 2 3 में से और 1 4 2 4 3 4 में से लेट्स से चूज 1 2 3, है ना। 1 2 और 3 चूज कर लिया। नाउ यू अंडरस्टैंड, अब मैंने 5 और 4 में से एक चूज किया, 4 1 2 3 1 2 1 4 2 4 3 4 में से कोई एक ही चूज कर सकता था, वो मैंने कर लिया 1 2 3। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर अब मैं दो एलिमेंट्स वाले सेट पे जाऊंगा 1 2 3 के अलावा, यू कैन सी कि मैं 1 2 और 1 3 को भी सेलेक्ट नहीं कर सकता हूं, राइट। व्हाई नॉट? क्योंकि वो वाले 3 देखो, वो 4 के अलावा जितने भी सबसेट्स बचे हुए हैं 2 एलिमेंट्स वाले में, वो सब के अंदर 2 एलिमेंट्स जो कॉमन है, 4 नहीं है, तो बाकी 3 जो अपने एलिमेंट्स है 1 2 3, उनके साथ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, एक ही एक्स्ट्रा एलिमेंट है, राइट। मैंने सिंगल एलिमेंट चूज किए, तो बिना 4 वाले जितने भी सबसेट्स बचे, देखो 1 2 1 3 2 4 2 3, आई कैन नॉट राइट एनी वन ऑफ देम नाउ। व्हाई? क्योंकि 1 2 1 2 1 3 और 1 2 3 में से अगर मैं किसी इनके सबसेट्स जो पड़े हुए हैं इधर 1 2 3 वाले, उनके साथ a डेल्टा b की वैल्यू तो 1 ही आएगी, एक ही एक्स्ट्रा से एलिमेंट है ना, तो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूं।
नाउ आई डायरेक्टली हैव टू कम टू द 3 एलिमेंट सेट, है ना, 3 एलिमेंट सेट पे आना पड़ेगा। या फिर आप उल्टा सोचो, सिंस आई चोज 1 2 3, व्हेन आई केम टू 2 डिजिट 2 एलिमेंट 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सबसेट, मतलब जब मैं इस पे आया 1 2, किसी और कलर से लिखता हूं, जब मैं इस पे आया 1 2 और 1 3 पे और 2 3 पे, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, इनके लिए मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, 1 3 4 1 2 4 2 3 4। अब आपको ये सोचना है ना कि इन 3 सबसेट्स और इन 3 सबसेट्स के बीच में से कौन, हर पेयर में से कौन सा वाला उठाना है। द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट चूज 1 2 1 3 2 3, क्योंकि 1 2 3 आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली। एक एलिमेंट वाला सेट अगर आपने चूज कर लिया, 2 वाले में से उनके साथ उनमें अगर कोई एक एडिशन हुआ है, वो वाला चूज नहीं कर पाओगे आप, राइट। यू कैन नॉट चूज 1 2 1 3 2 3। Instead, you will be fixed. You will be, forced to choose 1 3 4 2 3 4 and 1 2 4. ठीक है, तो आपको इसके बाद क्या चूज करना पड़ेगा, 1 3 4 1 2 4 and 2 3 4. गेटिंग माई पॉइंट। तो आपके पास ऑप्शन नहीं थी उसके आगे, राइट। ये बात आएगी वहां पे आपके पास, ओके। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में कौन सा चूज किया। एग्जैक्टली द फर्स्ट एलिमेंट यू चूज, वहां से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। नाउ दीज आर गॉन गाइस। नाउ फर्दर, अब आपके पास देखो ये वाले कवर हो गए सब। अब क्या बचा, ये वाला बचा 1 2 3 एंड 1 2 3 4, ठीक है। नाउ गाइस, सिंस आपने 3 एलिमेंट्स वाले 1 3 4 1 2 4 2 3 4 चूज कर लिए, यू कैन नॉट चूज 1 2 3 नाउ। आप 1 2 3 चूज नहीं कर सकते हो, है ना। व्हाई? बिकॉज इफ यू टेक इट विद द सबसेट, अब किसी के साथ भी करोगे, हर किसी के साथ करना पड़ेगा ना आपको। सो आई ओनली हैव टू फाइंड वन सच सबसेट जिसके साथ उसका a डेल्टा b 2 से कम आ जाएगा। सो यू कैन सी 1 2 3 का 1 2 4 के साथ 2 3 4 के साथ डेल्टा 1 आ जाएगा, a डेल्टा b, राइट। यू कैन नॉट चूज 1 2 3 नाउ, यू कैन नॉट चूज दिस नाउ, as good as you were not able to choose these one. Now 1 2 3 नहीं चूज कर सकते, अच्छा 1 2 3 4 चूज कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो। लाइक इफ यू चूज 1 2 3 4, ये वाला भी चूज आप नहीं कर सकते हो। सो ऑल द चॉइसेस आर exhausted. Now that is the end thing. So since I started with 4, मैंने 5 और 4 में से 4 चूज कर लिया, उसके कारण ही ये स्टार्टिंग हुई ना, ठीक है। You could only select these 8. ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक। 1 2 3 4, आई एम सॉरी, 3 वाला लिख सकते थे, सॉरी व्हाट आई फॉरगॉट हियर, ओके। 4 वाला नहीं लिख सकते हो, एज आई सेड 1 2 3 4 नहीं लिख पाओगे। यू कैन राइट 1 2 3, राइट, आई एम सॉरी, 1 2 3 आप लिख सकते हो। द थिंग इज एनी 2 यू कैन नॉट से कि एक एक्स्ट्रा है दूसरे के अंदर ना, 1 2 3 आप लिख पाओगे। देखो, आई एम सॉरी, आई ओवरलुक दैट बाय मिस्टेक। तो आप देखो 1 2 3 आप चूज कर सकते हो, एज आई सेड 3 वाले में आपको 1 2 3 करना पड़ेगा, यू कैन नॉट चूज 1 2 3 4। ओके, यू कैन सी, ओके, लेट मी जस्ट थिंक, 1 2 3 4 या 1 2 3 दोनों में से एक कर सकते हो। यू कुड हैव चोजन 1 2 3 4, नो, ओके, यस। व्हाई यू कुड नॉट चूज 1 2 3 4, उसका रीजन बताता हूं। बिकॉज गाइस, उसका अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक के साथ डेल्टा करोगे तो 1 आएगा, बिकॉज 1 2 3 4 एंड बिकॉज दीज 3 आर सबसेट्स ऑफ 1 2 3 4, कंप्लीट सबसेट्स अंदर है उसके, है ना। तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा 1 2 3 4 से इन 3 में, बट 1 2 3 जब आप करते हो, नो 2 ऑफ देम कैन हैव मोर देन, ऑल 3 कॉमन तो हो नहीं सकते, 2 ही कॉमन होंगे, तो एक उसमें एक्स्ट्रा, एक उसमें एक्स्ट्रा है। लाइक इफ यू डू a डेल्टा b ऑफ दीज 2, तो 2 3 कॉमन है, 1 और 4 आ जाएगा a डेल्टा b में, राइट। सो बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स तो 2 ही आ सकते हैं ना। सो बेसिकली यू कैन फाइंड इट हियर दैट देयर आर 8 एलिमेंट्स, which is exactly 2 power 4 minus 1 और 2 क्यूब, ठीक है। अब इसके बारे में सोचें कैसे ना, हाउ कैन इट बी f be equal to 2 power n minus 1, ओके। एट द सेम टाइम व्हाट एल्स वैल्यू ऑफ f could I have started with, मैं 5 से भी शुरू कर सकता था ना, लेट अस थिंक अबाउट दैट एज वेल, ठीक है। मैं f की कलेक्शन 5 से भी शुरू कर सकता था, ठीक है। सो दिस टाइम अराउंड आप वहां से चल सकते हो कि कैसे करेंगे। एक तो 5 वाला आ गया, 5 आ गया तो 4 चूज नहीं कर सकते हो, राइट।
1 2 3 भी चूज नहीं कर सकते हो, करेक्ट। यू कैन नॉट चूज 5 अगर आपने चूज कर लिया, 1 2 3 सिंगल एलिमेंट कोई भी चूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज देन जब भी आप कुछ आप देखोगे ए डेल्टा बी में तो सिंगल एलिमेंट ही आएगा ना, आप कर ही नहीं पाओगे चेक सेलेक्ट, ठीक है। फॉर 5 यू कैन नॉट सेलेक्ट 1 2 3 एंड 4, यू हैव टू डायरेक्टली गो टू 2 एलिमेंट सबसेट। अब 2 एलिमेंट सबसेट में आप सारे के सारे चूज कर लोगे, लेट्स से, है ना, 1 2 1 3 1 4, कोई भी सारे चूज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 2 4 3 4, राइट, यू कैन चूज ऑल ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज अगर आप दो एलिमेंट्स वाले सबसेट में से कोई भी दो पिक करोगे, दे विल हैव वन एलिमेंट कॉमन मैक्सिमम एट मैक्स, है ना, एट मैक्स एक एलिमेंट कॉमन होगा, तो एक एक ए डेल्टा बी में दोनों सेट में यहाँ पे एक ए के अंदर आ जाएगा, एक बी के अंदर आ जाएगा, राइट, विच इज नॉट कॉमन एंड ओके। तो 4 वाले सारे चूज कर लिए। नाउ यू कैन सी वंस यू चूज ऑल ऑफ देम, अब 3 वाले सबसेट सारे के सारे चूज नहीं कर सकते हो, है ना, व्हाई नॉट? जैसे 1 2 है, 1 2 4 वाला चूज नहीं कर सकते हो, 1 3 है, 1 3 4 वाला चूज नहीं कर सकते हो, 1 4 आपके पास पड़ा है ऑलरेडी, यू कैन नॉट चूज, सॉरी 2 3 पड़ा हुआ है, तो 2 3 4 नहीं चूज कर सकते हो। तो 3 एलिमेंट्स तो पक्का नहीं है जिसमें 4 नहीं है, ऐसे आपके पास कितने सबसेट्स है? 3 थे, तो वो 3 तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। और फोर्थ वाला भी जो होगा, लाइक 1 2 3 वाला भी आप चूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट 1 2 3 विल नॉट हैव कॉमन एलिमेंट, लाइक इट इज हैविंग 2 कॉमन एलिमेंट्स विद एनी ऑफ द सबसेट्स, विद सम ऑफ द सबसेट्स, तो आप चूज नहीं कर सकते हो। देन यू डायरेक्टली हैव टू मूव ऑन टू 1 2 3 4। अच्छा, ये क्यों हो लिख सकते हैं हर बार 1 2 3 4 पे क्यों मूव ऑन कर पा रहे हैं? बिकॉज अगर आप देखोगे गाइस, 2 एलिमेंट सबसेट के बाद सीधा 4 एलिमेंट सबसेट पे आ जा रहे हैं। 4 एलिमेंट सबसेट में अगर आप ए डेल्टा बी करोगे किसी भी 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट के साथ, 2 एलिमेंट्स तो पक्का एक्स्ट्रा आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, उनमें 2 हैं, तो 2 तो वैसे ही उसके पास एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है ना, सो ए डेल्टा बी में कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे, करेक्ट। सो यू कैन ऑब्जर्व अ पैटर्न हियर गाइस, क्योंकि जब आप एफ के अंदर देख रहे हो, यू आर गोइंग विद सिंगल एलिमेंट सबसेट्स, देन 3 एलिमेंट सबसेट्स, है ना, वेयर एज सेकेंड केस में क्या हो रहा है, या तो आप 0 एलिमेंट सबसेट पे गए, फिर 2 एलिमेंट सबसेट पे गए, फिर 4 एलिमेंट सबसेट पे गए। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस पैटर्न है कि ये तो बात हमेशा सही बनेगी, दैट सिंस यू हैव n एलिमेंट्स, है ना, तो अगर आप सारे सबसेट्स बनाओ जिसके अंदर 0 एलिमेंट सबसेट्स हैं, दीज आर 0 एलिमेंट सबसेट्स, प्लस 2 एलिमेंट सबसेट, 4 एलिमेंट सबसेट्स एंड सो ऑन, बेसिकली इवन एलिमेंट सबसेट्स दैट विल एड अप टू 2 पावर n minus 1 ना, ये सम तो हमें पता है। सो दीज आर collection of all even numbered elements, सॉरी even numbered subsets, ठीक है, जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब 0 2 4 6, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, दैट इज ऑल्सो 2 पावर n minus 1, तब हो रहा है ना 2 पावर n minus 1, आप चूज कर सकते हो। सेम वे इफ यू हैव ऑड नंबर्ड, एक एलिमेंट्स वाले सबसेट, 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट, 5 एलिमेंट्स वाले सबसेट एंड सो ऑन, दैट विल ऑल्सो एड अप टू 2 पावर n minus 1, ये तो हमें पता है, हाफ करके आ जाता है ना बाइनोमियल से। एंड दीज आर व्हाट, दीज ऑल केसेस आर ऑल ऑड नंबर्ड सबसेट्स, ठीक है ना, जिसके अंदर ऑड नंबर के सबसेट्स होंगे। सो है ये, बाय दिस वे यू कैन प्रूव इट, ठीक है ना, आप दिखा सकते हो कि कोई भी ऑड एलिमेंट, ऑड एंड नंबर्ड सबसेट्स हैं, तो वो वाले चूज कर सकते हो या तो सारे के सारे, बिकॉज यू थिंक अबाउट इट ना, आप कोई भी 2 सबसेट उठाते हो, द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग इज गाइस, जब आप NC5 देखो, अगर हमने कहा कि सारे के सारे इवन नंबर चूज कर लिए, तो जब भी NC कोई भी 2 का अगर आप पिक करते हो क्रॉस में, लाइक NC0 एंड NC4, तो 4 एलिमेंट्स ही एक्स्ट्रा हैं, तो आएंगे ही 2 तो एक्स्ट्रा, है ना, 2 से ज्यादा ही आ रहे हैं डेल्टा बी में। NC2 और NC4 में चूज करते हो अगर आप एक सेट उसमें से, एक सेट उसमें से, तो 2 एलिमेंट्स, अगेन जैसे मैंने लॉजिक बताया, एक्स्ट्रा ही है 2 एलिमेंट्स, तो ए डेल्टा बी में तो 2 होंगे होंगे, कम से कम होंगे, है ना। ओके, व्हाट अबाउट अगर एक ही सबसेट्स में से चूज हो गया, मतलब NC4 में से ही या फिर NC2 में से ही कोई 2 चूज कर दिया आपने, अब उसमें क्या रीजन है, NC2 में जब आप NC2 कहते हो, कोई भी 2 सबसेट के अंदर कम से कम एक, मैक्सिमम एक एलिमेंट कॉमन हो सकता है, दोनों के दोनों तो कॉमन हो नहीं सकते, मैक्सिमम एक एलिमेंट कॉमन हो सकता है। सो इफ इवन इफ दैट एलिमेंट इज कॉमन, जो एक्स्ट्रा बचे ए डेल्टा बी में कम से कम 2 आ गए,
सेम थिंग will happen for NC4. How? NC4 के अंदर भी you have 4 element subset, right? कोई भी 2 सबसेट अगर आप उठाते हैं 4 एलिमेंट सबसेट्स, उनके अंदर मैक्सिमम 3 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि चारों कॉमन हो गए फिर तो सबसेट ही सेम होगा ना। 3 एलिमेंट्स मैक्सिमम सब कॉमन हो सकते हैं और बाकी 2 एक्स्ट्रा जो हैं वो A डेल्टा B में आ जाएंगे, 2 हो गया वो, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द ऑड नंबर्ड एज वेल, है ना। एग्जैक्टली द सेम लॉजिक इज वर्किंग इन ऑड नंबर्ड सबसेट्स एज वेल। सो दैट इज योर आंसर गाइज, कि मैक्सिमम 2 पावर n-1 हो सकते हैं, हमने वो शो कर दिया पहले। देन वी शोड दैट कि इक्वल कब होगा, आइदर यू सेलेक्ट ऑल द इवन नंबर्ड सबसेट्स, सब उसका कलेक्शन बना दो F में, या फिर आइदर यू सेलेक्ट ऑल द ऑड नंबर सबसेट्स। ओके, सो दैट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो केस एक लेके गाइस अगर आप उसको यू कैन एलैबोरेट ऑन इट, सोच सकते हो उसको, तो काफी इंटरेस्टिंगली आपको बेटर समझ में आ जाएगा, राइट। So that's it guys from my end. I hope you guys understood this question and were able to learn something from it. ठीक है, so with this question we mark the end of the question paper of INMO 2014, है ना, वो खत्म हो गया हमारा। So far we have overall completed 15 years worth of papers. So basically 90 questions with solutions are posted on our channel after this video. So I would suggest you guys make the most of it. Please watch them, but after solving the question, giving it the questions a good attempt, then आप try करो उसको, right? So that it is beneficial for your INMO exam. Okay, so guys, we'll come back with the next question of we'll start with the next paper 2015 in our next video. Okay, so till then keep practicing and all the best guys. Bye bye, take care, good night.